राइट बेटा। तो हम क्या समझ रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को समझ रहे हैं। तो इफ आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज सम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, वी डोंट नो अभी कुछ भी वो पॉलिनोमियल है, एंड आई एम आस्किंग इफ एनीथिंग लाइक x minus a is a factor of this p of x or not. This is my question to you. अगर मैं पूछ रही हूँ कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यू विल फाइंड x माइनस ए इक्वल्स टू 0, so that is x equals to a, and now in p of x you will find out p of a. If x minus a is a factor of p of x, then p of x at a will be equals to 0. मतलब अगर x माइनस वन बेटा जी अगर p ऑफ x का फैक्टर होगा, तो यहाँ से जो वेरिएबल का वैल्यू निकल कर आया है, इफ यू पुट दैट वैल्यू इनटू द पॉलिनोमियल इंस्टेड ऑफ x, द एंटायर पॉलिनोमियल विल टर्न इनटू 0. The value of complete polynomial will become 0. And what is this actually? This is the remainder actually. तो हमने अभी ये बात एक मैथ्स के एग्जाम्पल से समझी बेटा कि इफ आई से इज 2 अ फैक्टर ऑफ 12, तो यू नो व्हेन यू डिवाइड 2 12 बाय 2, तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? आएगा ना रिमाइंडर 0। तो आपको यहाँ जो इक्वल्स टू आता है ना बेटा, दैट इज एक्चुअली द रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर पूरा 0 हो जाता है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब इसको क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको इक्वेशन को समझते हैं। ओके, मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट और नॉट बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस वन इज अ polynomial with me, and I am asking you कि okay, you tell me now. Let me make the pen a little thicker. चलो ठीक है ऐसे ही। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ इंस्टेड ऑफ दिस x माइनस ए, मैं आपसे कह रही हूँ आई एम टेकिंग दिस x माइनस वन, एंड नाउ माई क्वेश्चन इज x माइनस वन अ फैक्टर ऑफ, is x minus 1 a factor of x square minus 1? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द जीरो ऑफ दिस। फाइंडिंग द जीरो ऑफ दिस मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन यू इक्वेट दैट विद जीरो। So x minus 1 is equals to 0, so x is equals to 1. Now in this p of x which is given to you, x square minus 1, you will put this p of 1 there. Instead of this x you will put the value 1. x को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं बेटा इन दी पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड और नॉट? नाउ व्हाट आई विल डू हियर, इंस्टेड ऑफ x आई विल राइट 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 0. So if polynomial of x at 1 becomes 0, so you can conclude that yes, x minus 1 is a factor of given polynomial p of x. Understood बेटा जी और नॉट? Yes. अब कुछ समझ में आया? Yes. कंफर्टेबल लग रहा है? अब ग्रीशा Yes. कंफर्टेबल लग रहा है बच्चे? Yes, mom. So every time when I ask you if this given thing is a zero of the given polynomial, for the thing that you are checking as if it is a factor or not, तो आप क्या करेंगे, आप उसका जीरो फाइंड करेंगे और उसका जीरो आप पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, एंड यू विल चेक इफ दैट इज इक्वल्स टू जीरो। इफ दैट is equals to 0, yes it is a factor. If that is not 0, that means it isn't the factor. फिर if that is not the factor, what is that you are getting there? अगर यहाँ पर Remainder. जीरो नहीं आ रहा तो वो क्या Remainder. है? That is the remainder. When you are dividing both the things, x square minus 1, आपने x minus 1 से डिवाइड किया, तो that is the remainder. इस केस में this is 0. Understood everyone or not? Is this concept clear everyone? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और हम क्वेश्चंस देखना शुरू करें।
examine whether x plus 2 is a factor of this and of this. So there are two expressions given to you. They are asking you to check if x plus 2 is a factor of this or not. So what did I tell you? First of all, you will put x plus 2 equals to 0. You will find the 0 of this little polynomial here, that is negative 2 beta. And now this x is equals to negative 2. Instead of this p of x, x cube plus 3x square plus 5x plus 6, you will make this polynomial at minus 2. x का value minus 2 put करना है. So minus 2 to the power 3 plus 3 into minus 2 square plus 5 into minus 2 plus 6. So that will be 2 2s are 4, 4 2s are 8. Then 2 2s are 4, 4 3s are 12. Then minus 10 and plus 6. Now what? This is 8 and 6 is 14. 14 plus 12 is 26. 26 minus 10 is 16. Right or not बच्चे? कुछ गड़बड़ किया क्या? ये -2 आना था. This is -2. ये पॉजिटिव हो जाएगा आंसर. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. आप देखो यहाँ पे. Now this is -2 है ना? तो -2 and -10 is 0 आ रहा है बेटा आंसर. So yes, it is a factor. Yes, x plus 2 is a factor. This x plus 2 is a factor of this given polynomial. Understood everyone or not? Clear or not? Now if I ask you if this is a factor of 2x plus 4, how will you check this? This is 2x plus 4. So this is polynomial of x given to you, no? So this is -2 into 2 plus 4. So that's -4 plus 4, that is 0. That means yes, x plus 2 is a factor of polynomial of x. Understood or not? Clear or not everyone? Yes, ma'am. आगे चले. कोई डाउट है बच्चे तो पूछो, अभी तक जल्दी से पूछो. कोई कुछ प्रॉब्लम लग रही है किसी को? या आशी समझ में आया? Yes, ma'am. It's ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पर आते हैं, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of this. So now देखो यहाँ पे ध्यान से, in this polynomial of x there is one more variable given to you, k. They are asking you to find the value of k here. So how will we find this? You know that is given to you that x minus 1 is a factor of this. So Samihan, tell me if x minus 1 is a factor of this, तो क्या होना चाहिए? Value of x from this, if put into this entire thing become equals to 0. ma'am, Right? is equal to 0. Clear no? So that means x minus 1 may say, if you find the 0 or you find the value of x, that is positive 1. When you are putting it in this polynomial of x, 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. When you are putting this value here, this should become 0. Right or not? है ना? That is that they're telling you it is already a factor. So this should become equals to 0. We know this because yes, it is a factor. So 4 into 1 cube plus 3 into 1 square minus 4 into 1 plus k equals to 0 होना ही चाहिए, because they have concluded कि ये factor है. तो इसका मतलब 4 plus 3 minus 4 plus k equals to 0 बच्चे. इसको कैंसिल करो. 3 plus k equals to 0. मतलब k is equals to -3. Yes. That is the answer. कोई प्रॉब्लम बच्चा यहाँ पे? No, ma'am. कोई डाउट किसी को? ग्रिशा, अनघा?
No, ma'am. No, ma'am. So finding the value of k is very easy. The concept should be clear with you. If given term is a factor of the given polynomial, so derive 0 from one thing, value of one thing, and put it in the next polynomial or the given polynomial, that should equal to 0. And when that should equal to 0, तो वहां पर एक simple equation बन जाएगी with that unknown variable there k. Right or not बच्चे? Clear है ना? चले अभी आगे करें. Next type of questions देखिए कौन से हो सकते हैं यहाँ पे. Now they are asking factorize by middle term splitting and by using factor theorem. तो दोनों से आपको फैक्टराइज करने को कह रहे हैं. वन इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करना है आपको? यू नो इट ऑलरेडी, है ना? Yes. किया है ना? तो करें इससे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. जल्दी से करो, आप लोग नोटबुक में ट्राई करो फटाफट से. चलो एक बार फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डिस्कस कर रहे हैं. 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट करें हमेशा ध्यान रखें कि दिस पॉलिनोमियल इज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स. ठीक है, 2 1 एंड x टू द पावर 0 इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ होना चाहिए. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए पॉलिनोमियल अपने. अभी आप सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो x0 के कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं 6 into 5 और फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो दैट विल बी 2 into 3 into 5, राइट? है ना? उसे प्रोडक्ट करके प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है. दोनों जो मल्टीप्लिकेंड्स है दोनों को अलग अलग से फैक्टर्स कर दो. Now these are the factors that are there with you. Now you should keep this in mind that when you multiply both of them, जब आप दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो दैट शुड बी 30. 6 5s are 30 होना चाहिए. और जब आप उनका सम फाइंड करें तो वो पॉजिटिव 17 होना चाहिए, राइट? तो मतलब आपको इसमें से पेयर्स बनाने हैं कि किसी तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 17 आता हो. सो 5 3s are 15 एंड 15 2 प्लस 2 इज 17. तो दो पेयर्स क्या बने? 15 और 2 के, राइट? दोनों के साथ x लगा देंगे, 15x और 2x. और अब हम यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, राइट बच्चे? सो व्हाट इज इट नाउ? अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से और लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे. 6 और 15 में 3 कॉमन है ना? तो 3x को कॉमन ले लेंगे. अंदर 2x रिमाइंडर बच रहा है प्लस विद 5. हमेशा ध्यान रखना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद दीज ब्रैकेट्स आर आइडेंटिकल. 2x प्लस 5 यहाँ पर आइडेंटिकल होगा. अब यहाँ पर कॉमन क्या होगा? फिर यहाँ पर कॉमन होगा +1, क्योंकि 1 into 2x is 2x and 1 into 5 is 5, राइट बच्चे? अब हम इसे अगर करें तो दिस इज 3x plus 1 and 2x plus 5, राइट बेटा? तो ये क्या हो गए? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से दो फैक्टर्स बन गए. क्या बच्चे? हम इसका आंसर 0 लाना चाहिए सके. आंसर 0 आना चाहिए. अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि इसको आपको कब इक्वल टू 0 पुट करके इसके जीरोस निकाल सकते हो. अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन की. हमने उन्हें 2 स्प्लिट्स में तोड़ दिया. जैसे 6 को 2 स्प्लिट्स में तोड़ दो, 2 3s are. तो अभी हमने सिर्फ उन्हें ब्रेक किया है, ठीक है? तो ये 2 ब्रैकेट्स जो बने हैं दे आर 2 फैक्टर्स, लाइक 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6. Likewise 3x plus 1 and 2x plus 5 are factors of 6x square plus 17x plus 5. Are you getting it बच्चे or not? Clear everyone? तो ये क्या है? These are 2 factors. अब अगर ये 2 factors हैं बच्चे, ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. अब इसी सेम चीज को आपको करना है फैक्टर थ्योरम से. फैक्टर थ्योरम से किस तरीके से करेंगे इसे? ध्यान से देखो. फैक्टर थ्योरम से आप ट्राई करेंगे, यू विल ट्राई विद डिफरेंट थिंग्स. जैसे मैं यहाँ पर आपको कहती हूँ, मान लेते हैं, मैं पहला ऐसा ही वेग एनी नंबर करके बता रही हूँ. मान लेते हैं x plus 1 is a factor of 6x square plus 17x plus 5. मान लेते हैं, राइट बेटा? तो अगर ये x plus 1 is a factor of this, इसका मतलब x plus 1 equals to 0
विच मीन्स x माइनस 1। जब आप इस p ऑफ x में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए, राइट और नॉट? है बच्चे बात ये करेक्ट कि नहीं? अभी तो फैक्टर थ्योरम समझ के आए हैं हम। फैक्टर थ्योरम में यही है ना कि अगर x+1 इसका फैक्टर होगा तो x+1 का 0 अगर आप p ऑफ x में पुट करेंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट और नॉट? यही था। तो अब इसका मतलब ये क्या पॉजिटिव 1 हो जाएगा, इंटू 6 विल बी 6, ये नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 + 5। इज इट एनी हाउ कमिंग 0? No, that's not equals to 0. And if that is not equals to 0, मतलब x+1 is not a factor of the given polynomial. Understood or not? तो अब ऐसा तो फैक्टर्स निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, है ना? जो सिंपल इक्वेशंस होंगी उनमें थोड़ा जल्दी आएगा, और जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होंगे उनको करने के और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, उससे फैक्टर्स निकल सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें इन्होंने डायरेक्टली वहां पे फैक्टर थ्योरम में जो भी उसका 0 है, देखो यहाँ पे 6 इंटू एक्स माइनस 5a इंटू एक्स माइनस बी इज दी फैक्टर ऑफ इट। तो वहां से वो उसकी वैल्यूज को लेकर ये फाइंड कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही। अगेन एक्चुअली तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिससे करते करते यहाँ पर आए हैं कि x+1/3 एंड x+5/2 they'll be two values which you put into it, you will get it 0, which is again a complicated thing. For this आप इसे कैसे करेंगे, इस मेथड को आप, इस क्वेश्चन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करेंगे, राइट? मैंने फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? अब करें ये एक, ये वाला सॉल्व करें फैक्टर थ्योरम से, y², ये दिस विल बी अ लिटिल सिंपल फॉर यू अभी टू स्टार्ट विद। तो करें इससे शुरू। y² minus 5y plus 6, that is the polynomial of x given to me, polynomial of y, right बेटा? वेरिएबल y है। अब फैक्टर थ्योरम से इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो हाउ विल वी डू दिस? वी विल स्टार्ट पुटिंग अप वैल्यूज जो कि 0 दे दे हमें यहाँ पर, जैसे p of 1, p of -1, p of 2, p of -2। देखिए कहाँ 0 आता है। p of 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1² - 5 इंटू 1 + 6। आ रहा है क्या बेटा 0? नहीं, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 1 - 5 + 6, तो ये किसी भी तरीके से 0 नहीं होगा। दैट इज 7 - 5, 7 - 5 इज 2, नॉट 0। नेक्स्ट में पुट करके देखो -1, सो दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1, ये माइनस है, -5 इंटू -1 + 6। आ रहा है क्या 0? -1 को स्क्वायर करोगे +1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +6, ये 5 1 5 एंड +6, ये तो सभी ऐड हो रहे हैं, 0 कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता 0, राइट और नॉट? नेक्स्ट पुट करके देखे वैल्यू p of 2 में, 2² - 5 इंटू 2 + 6, so what is 2²? 4 - 5 2s are 10 + 6, so ये दोनों ऐड करो, 10 - 10 is 0। p of 2 is equals to 0 आ रहा है बेटा, that means x equals to 2 है, which is a factor, y is equals to 2 है, which is a factor of this। इसका मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो y - 2 is a factor। Understood or not? क्लियर है बच्चे की नहीं है? एक तो मैम फैक्टर निकल आया। मैम तो मतलब एग्जाम में भी ऐसे ही रैंडमली ट्राई करना पड़ेगा किसी के साथ भी? अगर फैक्टर थ्योरम बोलेंगे तो यस। नाउ अगर आपको एक मिल गया फैक्टर, दूसरा तो नहीं मिला, अब और हिट एंड ट्रायल मेथड करें क्या? तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे y² - 5y + 6, ये लॉन्ग डिवीजन से आपने सीखा था मेरे साथ, ये y - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सीखा है आपने मेरे साथ ये मेथड? Yes,
8 में। ग्रीशा आपको आता है ये लॉन्ग डिविजन मेथड? Yes, mom. फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर को डिवाइड करते हैं y स्क्वायर बाय y. यू विल गेट टू नो द क्वोशिएंट दैट शुड बी केप्ट हियर, एंड दिस क्वोशिएंट अब y माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 2 टाइम्स y, so that is y square minus 2y. with the reverse sign आप इसे यहाँ कॉपी करेंगे, minus y square plus 2y. first term will be gone, minus 5 plus 2 is minus 3y plus 6. right or not बच्चे? हर फ्लोर पे पहला डिविडेंड पहला डिवाइजर डिवाइड करेंगे, -3y बाय y, y से y गॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन पता लग गया, शुड बी -3. -3 से इस पूरे y -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा -3y प्लस 6. रिवर्स साइन के साथ इसे यहाँ कॉपी करेंगे, +3y -6. ध्यान से देखिए दोनों कैंसिल ऑफ होकर रिमाइंडर 0. दूसरा फैक्टर क्या निकल आया बेटा? y -3. तो इसके दो स्प्लिट्स किए आपने. वन स्प्लिट इज y -2 जो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से गेस किया, एंड अनदर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला y -3. अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? फैक्टर थ्योरम समझ में आया कैसे अप्लाई करके फैक्टराइज करना है? क्लियर है सबको? आगे चले. स्क्रीनशॉट लेना है किसी का ले लो, बाद में कंप्लीट करना है ये सारे स्टेप्स. चले बच्चे नेक्स्ट करें फैक्टराइज. क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं. किस तरीके से करेंगे? सब लोग कैमरास ऑन रखो अपना. किस तरीके से करेंगे हम इसे फैक्टराइज? इसे फैक्टराइज करने के लिए आप पहले वही अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले आप पहला फैक्टर निकालेंगे. राइट बच्चे? तो दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन टू यू. मैम पर यहाँ पे एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा बोलो. मैम लेकिन इसमें जो फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए नहीं कहा. मैं कह रही हूँ. अच्छा ओके. अगम कैमरा ऑन कर रहा. जस्ट सेकंड. So P of 1 find करके देखे if that is equals to 0. So we'll write 1 cube minus 23 into 1 square plus 142 into 1 minus 120. बताओ आ सकता है क्या 0? 1 minus 23 plus 142 minus 120. बताओ जल्दी से 0 आ रहा. 0 मिल गया हमको. That means बेटा जी x equals to 1 जो है has given you 0 है ना? राइट और नॉट? तो इफ दैट इज इक्वल्स टू 0, आपको 0 आ गया है, इसका मतलब यू ट्रांसपोज दिस टू द अदर साइड एंड मेक इट अ फैक्टर. x minus 1 is a factor of p of x. अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? फैक्टर कैसे मिला? जिस वैल्यू पे यू गॉट द कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, उस वैल्यू को ट्रांसपोज किया एंड यू गॉट इट. Understood beta or not? So x minus 1 is a factor of this. Now how will you find the other factor? Long division method. Understood or not बच्चे? This is how you do cubic ones. तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं इसी के ऊपर ही एरिया दोबारा क्रिएट कर रही हूँ काम करने के लिए. But that is not rough work. वो जो हमने पीछे किया था that is all required, उसकी वेटेज है. ओके. x cube minus 23x square plus 142x minus 120 को डिवाइड करेंगे x minus 1 से. कैसे करते हैं सब ध्यान से सुनो.
हर बार फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर आप साइड में ले जाकर डिवाइड करके देख लेते हैं, आपको क्वोशिएंट पता चल जाएगा। नाउ व्हेन यू नो द क्वोशिएंट, अब जो डिवाइजर है उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करो टू गेट द कंप्लीट डिविडेंड। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसे रिवर्स साइंस के साथ यहाँ कॉपी करेंगे, माइंड इट रिवर्स साइंस के साथ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होता है तो सारे साइंस रिवर्स हो जाते हैं। और आपको याद हो अगर, तो आपने जब 12 को 2 से डिवाइड किया था तो 2 6 12 लिखकर सब्ट्रैक्ट किया था, राइट? तो देखो 12 का साइन रिवर्स हुआ ना, 6 2 तो 12 होता है, लेकिन आपने रिवर्स साइन किया क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइकवाइज मैं भी यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। आर यू गेटिंग इट बेटा जी और नॉट? तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे रिवर्स साइन के साथ वहां कॉपी कर रही हूँ, दैट इज माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल हो ही जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बचता है, -23 और +1। -23 + 1 इज -22x स्क्वायर। रेस्ट आप ऐसे ही कॉपी कर देंगे, +142x -120, राइट बेटा जी और नॉट? अब आप क्या करेंगे, अगेन फिर से वही फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से डिवाइड करके नया क्वोशिएंट पता करेंगे। सो -22x स्क्वायर बाय x से एक x कैंसिल हो जाएगा, -22x जो है आपका वो नेक्स्ट क्वोशिएंट हो गया। अब आप इससे मल्टीप्लाई करें x -1 को, x -1 टाइम्स -22x, सो दैट विल बी -22x स्क्वायर। ये x से ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस होगा x, राइट बच्चा? अब इसे रिवर्स साइन के साथ वहां कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे, +22x स्क्वायर -20। ओके टू एवरीवन? होप इट्स नॉट लैगिंग और echoing फॉर एनीवन। मुझे सिग्नल आया है कि इंटरनेट इज अनस्टेबल। सो फर्स्ट टर्म्स हमेशा कैंसिल हो जाएंगी बेटा, एंड व्हाट इज लेफ्ट विद यू, +142 -22 इज +120x -120, राइट और नॉट बच्चा? अब क्या करेंगे, अगेन हम अब डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड 120x को x से डिवाइड करेंगे। सो x से x डिवाइडेड 120, आपका क्वोशिएंट आ गया +120। और अब आप x -1 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 120x -120। रिवर्स साइंस के साथ कॉपी करेंगे, -120x +120। ध्यान से देखें दोनों चीजें रिवर्स साइन के साथ है, आइडेंटिकल, कैंसिल हो जाएंगी। -120 +120 कैंसिल एंड यू हैव गॉट 0। फैक्टर कहाँ है दूसरा जो हमने कहा था लॉन्ग डिवीजन से मिलेगा, वेयर इज दैट फैक्टर? On the question. राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे यहाँ पे, इसका मतलब आपके x क्यूब -23x स्क्वायर +142x -120 के दो फैक्टर्स आपने बना लिए। वन इज x -1, अनदर इज x स्क्वायर -22x +120। अभी क्या करें, अभी इसके दो फैक्टर्स और बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाएंगे। जल्दी से डू इट बाय योरसेल्फ बेटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 तो मिलने चाहिए ना, है ना फैक्टर्स? तो जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड करो फटाफट से। सो जब आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया x स्क्वायर -22x +120 का, सो यू हैव गॉट दीज टू फैक्टर्स है, एंड एक फैक्टर आप पहले निकाल चुके थे। तो पूरी क्यूबिक इक्वेशन का जब आपने फैक्टराइज किया तो द आंसर दैट यू हैव गॉट इज x -1 इनटू x -10 इनटू x -12। ये 3 फैक्टर्स हो गए
ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आपने कैसे निकालना शुरू किया इसे? फैक्टर थ्योरम से। द वन यू डिड इन द बिगिनिंग, दैट इज फैक्टर थ्योरम। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को ऐसे ही फैक्टराइज किया जाता है। दिस इज द वे। क्लियर है बच्चे? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को?